strategy that lets you find new customers who will be ready to pay you advances. Then I'm going to share with you a backdoor hack that shall reveal thousands of business prospects in under 1 minute. मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगा कैसे हम जो है अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट निकालेंगे गूगल के ऊपर कुछ हैकिंग यू कैन से कमांड्स यूज करके हैकिंग कमांड्स यूज करके एंड आप देखेंगे कि आप में से कुछ लोगों को हजारों आपको प्रोस्पेक्ट्स मिल जाएंगे लिस्ट मिल जाएगी एंड लगभग 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने में समझने में और इम्प्लीमेंट करने में ओके सो आफ्टर दैट मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी और बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन जनरेट hundreds or perhaps thousands of leads for whether you are in B2C market, business to consumer, you can say market or B2B market, जिसमें आप businesses से आप deal करना चाहेंगे. B2B, B2D stands for business to distributors and channel distribution channel, and B2G stands for business to government. इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइप की इंडस्ट्री में है किस टाइप की मार्केट के अंदर है क्या प्रोडक्ट्स है क्या सर्विसेज बेच रहे हैं most of you should be able to generate leads, not just few leads, not just some leads. If you have enough data, if you have the strategy implemented correctly, you should be able to generate hundreds or thousands of leads after today's webinar. And towards the end, I will share some hacks that will help you generate some leads and sales as well. So, hi, my name is Manoj Bajaj. I am CEO, founder, partner of this company called Greybox Technologies. I have over 23 years of experience, and I have helped so far more than 2,500 businesses, and have helped businesses grow their profits anywhere between COVID-19 lockdown using digital marketing and strategies under digital marketing. So we will start with led financial to basically accordingly. So I have created this webinar, and in this webinar, what we are going to cover today is that what is the largest business opportunity that has opened up in the last couple of weeks. And I have been talking to a lot of people, and I think and I see in my conversation that hardly anyone has noticed it. Okay, I'm going to introduce you to that opportunity and how.
how you can milk that opportunity for the best of your advantage. Then I'm going to talk to you about the marketing system that is going to work. In fact, as per how I believe it, this will be the only system that will work during Corona crisis. Why do I think like this? Because if you see marketing at large, people have stopped moving out. People have stopped taking newspapers. People have stopped taking magazines because everyone is concerned and scared that they may attract corona in their house by getting these external things like newspaper, magazines, or something else. Since people are not moving out, the out of home, the banners, the hoardings have been rendered useless. Since people are not ordering any newspapers or magazines, so they are again have been rendered useless. So if I tell you that if you take an overall picture that offline advertising, offline marketing has crashed and burned completely. जो आज की डेट में वर्क कर रहा है वो है न्यूज़पेपर के अलावा और बाकी चीज़ों के अलावा जो है टीवी एंड रेडियो। अब टीवी एंड रेडियो जो है वो 97% स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रेंज के बाहर होता है। सो प्रैक्टिकली देयर इज नो अदर मेथड लेफ्ट फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड फॉर जनरेटिंग न्यू बिजनेस। या तो आप फोन उठाएं और सबको कोल्ड कॉलिंग शुरू कर दें, या दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास बचा है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग द पावर ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी. So I'm going to introduce the only marketing system that will work during Corona crisis and after the lockdown as well. Then I'm going to share with you a very, very powerful strategy that lets you find new customers who will be ready to pay you advances. Then I'm going to share with you a backdoor hack that shall reveal thousands of business prospects in under 1 minute. मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगा कैसे हम जो है अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट निकालेंगे गूगल के ऊपर कुछ हैकिंग यू कैन से कमांड्स यूज करके, हैकिंग कमांड्स यूज करके, एंड आप देखेंगे कि आप में से कुछ लोगों को हजारों आपको प्रॉस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगी, एंड लगभग 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, समझने में और इम्प्लीमेंट करने में. ओके, सो आफ्टर दैट मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी और बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन जनरेट hundreds or perhaps thousands of leads for whether you are in B2C market, business to consumer, you can say market, or B2B market जिसमें आप businesses से आप deal करना चाहेंगे. B2B, B2D stands for business to distributors and channel distribution channel, and B2G stands for business to government. इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइप की इंडस्ट्री में है, किस टाइप की मार्केट के अंदर है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या सर्विसेज बेच रहे हैं. Most of you should be able to generate leads, not just few leads, not just some leads. If you have enough data, if you have the strategy implemented correctly, you should be able to generate hundreds or thousands of leads after today's webinar. And towards the end, I will share some hacks that will help you generate some leads and sales as well. So, hi, my name is Manoj Bajaj. I am CEO, founder, partner of this company called Greybox Technologies. I have overhead businesses and have helped businesses grow their profits anywhere between 17 to over 2000%. And recently, this book has gone on to become the bestseller on Amazon in March. Just, I think, the first week of the lockdown that was initiated in India. So this is the screenshot of the book, and it shows you how I have been involved and I've worked with companies, small companies, startups, medium-sized companies, large companies, up to. I would like to go forward and discuss. And now I would like to go forward and discuss कि इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट होने क्या वाला है बिजनेस के ऊपर. Okay, as I shared in my initial message, the sentiment is bleak. It is already a question of survival, and almost all businesses have shut down their operations except essential services. Force majeure has been revoked, and if you see orders, whether you are operating in local market, domestic market, or export or international market,
have started getting cancelled. And if you can see some screenshots, I've shown you B2B payments, H&M cancels orders, coronavirus lockdown, Hero Motor, Pop invokes force majeure, suspends payments to supplier. So this news has become a common place that all of us have been hearing. So this is a major, major, major problem. अब जब ये चीजें हो रही हैं तो इसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा? एज अ बिजनेस ओनर अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे को सैलरीज अभी भी देनी है, ईएमआई हमारे को अभी भी पे करनी है, रेंट हमारे को अभी भी पे करनी है, it is really really important for us to manage our finances and cash flows right now. The old economy is shattered and I personally do not think that it is going to come back anytime soon. So अब इससे होगा क्या? कोरोना क्राइसिस की वजह से दो इंपॉर्टेंट चीजें, प्लीज अंडरस्टैंड, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं. One is that it is going to severely impact the ability to buy for a lot of people. जब आप देखेंगे बिजनेस ओनर्स के पास पैसा नहीं है, कंपनीज के अंदर कैश फ्लो रुक गया है, तो उनके एम्प्लॉयज की सैलरीज या डिडक्ट होंगी या रुक जाएंगी या ले ऑफ्स होंगे उस केस के अंदर. अगर ले ऑफ्स होते हैं, सैलरीज डिडक्ट होती हैं, तो इसका मतलब उस पर्सन की जो एबिलिटी टू बाय है वो रिड्यूस कर गई है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपकी एबिलिटी चाहे रिड्यूस नहीं भी हुई है, जो आपकी विलिंगनेस है वो ड्रॉप हो गई है, बिकॉज एवरीवन इज फीलिंग स्केयर्ड, एवरीवन इज फीलिंग फियरफुल कि कल को हो सकता है सिचुएशन और ज्यादा खराब हो, तो मैं आज अननेसेसरी स्पेंडिंग्स ना करूं, मैं पैसे को होल्ड करके रखूं, पैसे को अपने पास संभाल के रखूं, सो दैट आई would have money left with me in the time of need if some bad situation occurs or arises. अब ये सारी सिचुएशन के अंदर कोरोना के बाद जो कस्टमर बिहेवियर है वो कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएगा एंड यू विल सी दैट इट इज जो कस्टमर अराइज अननेसेसरी स्पेंडिंग्स ना करूं, मैं पैसे को होल्ड करके रखूं, पैसे को अपने पास संभाल के रखूं, सो दैट आई would have money left with me in the time of need if some bad situation occurs or arises. अब ये सारी सिचुएशन के अंदर कोरोना के बाद जो कस्टमर बिहेवियर है वो कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएगा एंड यू विल सी दैट इट हैज हैपेंड इन जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स. मार्च फर्स्ट वीक के अंदर अगर मैं इंडिया की बात करूं, थिंग्स वर ऑलमोस्ट नॉर्मल. मार्च फर्स्ट वीक के अंदर, फरवरी, यू कैन से लास्ट वीक के अंदर थिंग्स वर ऑलमोस्ट नॉर्मल. उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े, 10 मार्च 15 मार्च तक आते आते चीजों के अंदर जो है हमने देखा मेजर न्यूज फ्लोट करने लग गई, और 21 मार्च को जो है या 22 मार्च को इफ आई रिमेंबर करेक्टली एक उन्होंने टेस्ट करा था जनता कर्फ्यू, और उसके बाद 24 मार्च ऑनवर्ड जो है उन्होंने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया, विच इज करेक्टली सो. ओके, अब इससे होगा क्या? जब ये फियर, जब ये यू कैन से पैनिक स्प्रेड हो रहा है, तो कस्टमर्स आर गोइंग टू स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन स्प्री एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट सेविंग मोर. अब उससे क्या होगा कि मनी जब है ही नहीं, कम होगी, तो वो बहुत जुडिशियसली लोग स्पेंड करेंगे, बहुत सोच समझ के स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिमांड जो है वो श्रिंक कर जाएगी. अब जब डिमांड श्रिंक कर जाएगी तो कस्टमर्स आर गोइंग टू बी रूथलेस इन जजिंग वेदर दे नीड टू स्पेंड मनी एंड मोर इम्पोर्टेंटली वेदर दे नीड टू स्पेंड मनी विद यू. ओके, एंड देन faith is either going to be restored or shaken in existing vendors. Important customers 15 मार्च नॉर्मल पैसे को अपने पास संभाल के रखूं, सो दैट आई would have money left with me in the time of need if some bad situation occurs or arises. अब ये सारी सिचुएशन के अंदर कोरोना के बाद जो कस्टमर बिहेवियर है वो कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएगा एंड यू विल सी दैट इट हैज हैपेंड इन जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स. मार्च फर्स्ट वीक के अंदर अगर मैं इंडिया की बात करूं,
10 मार्च एक उन्होंने टेस्ट करा था जनता कर्फ्यू, और उसके बाद ओके, अब इससे होगा क्या? जब ये फियर, जब ये यू कैन से पैनिक स्प्रेड हो रहा है, तो कस्टमर्स आर गोइंग टू स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन स्प्री एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट सेविंग मोर। अब उससे क्या होगा कि मनी जब है ही नहीं, कम होगी, तो वो बहुत जुडिशियसली लोग स्पेंड करेंगे, बहुत सोच समझ के स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिमांड जो है वो श्रिंक कर जाएगी। अब जब डिमांड श्रिंक कर जाएंगी, तो कस्टमर्स आर गोइंग टू बी रूथलेस इन जजिंग वेदर दे नीड टू स्पेंड मनी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वेदर दे नीड टू स्पेंड मनी विद यू। ओके, and then faith is either going to be restored or shaken in existing vendors. अगर कस्टमर के पास पैसे नहीं है देने के लिए, बायर के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो उस केस के अंदर उनके वेंडर्स को भी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कुछ वेंडर्स जो है इस सिचुएशन में सपोर्टिव हो। अगर वेंडर को अपना बिजनेस चलाना है, तो उसके अंदर भी उसको भी प्रॉब्लम आएगी, अगर पैसा नहीं आएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा, तो उस केस के अंदर जो है, या वेंडर जो है उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उसके अंदर आइदर द फेट वुड बी रिस्टोर्ड और शेकन इन एग्जिस्टिंग वेंडर्स, बिकॉज पैसा नहीं है, पैसे के बगैर काम कैसे होगा। नाउ ये सारी चीज, एक चीज आप अंडरस्टैंड करें, विच लीड्स टू दैट द डिमांड इज डेफिनेटली गोइंग टू श्रिंक। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने शायद एक्सपीरियंस करा होगा, या शायद आप लोग करेंगे, कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ आपके पास ऑर्डर्स होंगे, कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए होंगे, हो सकता है 10%, 20%, 30%, 40%। आपके जो कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, उन्होंने आपको जो है ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए होंगे, या उन्होंने उनका जो है पार्शियल कैंसिलेशन हुआ होगा, या पेमेंट्स आपकी जो आनी होंगी वो शायद रुक गई होंगी, या अभी उन्होंने बोला हो कि बाद में देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, 50% रेस्टोरेंट टू शट डाउन इफ लॉकडाउन एक्सटेंड्स टिल मे। अब हो क्या रहा है कि जब डिमांड श्रिंक कर रही है, तो डार्विन थ्योरी जो है ना, इज गोइंग टू एक्टिवेट ऑटोमेटिकली। व्हाट डार्विन थ्योरी टेल्स अस, इट इज गोइंग टू बी द सर्वाइवल ऑफ द fittest and the healthiest. Now, business with weak fundamentals, like with poor cash flow, poor dependence on passive referrals, high overhead, weak marketing and sales skills, would probably be wiped out. Okay, so when I say passive referrals, मेरे को बहुत सारे businesses ऐसे मिलते हैं जब वो मेरे को बताते हैं कि हम तो जो है सिर्फ तभी एक्शन लेते हैं जब हमारे को कोई आता है, पैसिवली कोई हमारे पास रेफर करके आता है। ओके, हमारा कोई डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिव प्लान नहीं है मार्केट करने का। हम लोग मार्केट में कस्टमर को ढूंढने नहीं जाते। कस्टमर एक हमारे से डील करता है, उसको अगर अच्छी सर्विस लगती है वो आगे दूसरे लोगों को बता देता है, और फिर मेरे पास जो है नए कस्टमर्स आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव रेफरल बिजनेस, कि आपका कोई एक्टिव स्ट्रेटजी भी नहीं है रेफरल्स को जनरेट करने की। पैसिव रेफरल का मतलब ये है कि आप रेफरल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, कि आपके पास इस महीने में कितने रेफरल्स के न्यू क्लाइंट्स या न्यू लीड्स आएंगी और उसमें से कितनी कन्वर्ट होंगी, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। ओके,
अब आपकी अगर ओवरहेड कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हैं, आपके मार्जिन बहुत थिन है, आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स और स्ट्रेटजीज इन प्लेस नहीं है, there is going to be a real threat for your business. Okay. However, at the same time, businesses with strong fundamentals, with sharp marketing and sales strategies, will get bigger and better chunks of market. How? Because जो छोटे businesses हैं या जो weak business fundamentals वाले जो businesses हैं, when they will get wiped out, demand आज तो है. होंगी, जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होंगी, डिमांड वापस से बढ़नी शुरू होगी, तो वो बिजनेस फिर कहाँ पर जाएगा? उन बिजनेसेस को जाएगा जो सरवाइव कर चुके होंगे, कर सके होंगे, और वो जब नई डिमांड आएगी, जो एडिशनल एक्स्ट्रा डिमांड आएगी, वो सारी की सारी जो है सर्व करेंगे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो सरवाइव करे होंगे, जो बचे होंगे, एंड those businesses would become even bigger and better and superior. Okay, now this was the context कि अभी तक हमने देखा कि what has not been working. Now, because of this corona, new opportunities have also started coming up. Now, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज जो है इस टाइम के ऊपर चाइना से डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है, जैसे यूएस के, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बोल रही है, और काफी सारी बाकी कंट्रीज बोल रही है कि चाइना हैज नॉट डन a good job and they tried to hit the facts, and they were also saying that WHO helped them. No, I have nothing to say in the political side of the thing, but I have just been hearing all these things and I am assuming कि आप लोग भी ये सब चीजें सुन रहे होंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज अब चाइना से अपना बिजनेस निकालना चाहती हैं। अब चाइना के बाद उनके पास ऑप्शंस बचते क्या क्या हैं? उनके पास ऑप्शन बचता है, फॉर एग्जांपल न्यू कंट्रीज लाइक द अदर कंट्रीज लाइक इंडिया. India is their next best option, and what some economists have been projecting that India might become the new China. Okay, after China companies move from China. So आपने शायद देखा होगा recently एक news आई है about 200 large US are now trying to move out of China, and they are looking at opportunities to set up their marketing bases, or sorry, not marketing, manufacturing bases in India. Okay, so I have been able to collate these list of 200 companies. Now, please type in the chat box. Let me just open the chat for you first.
Just a second. Okay, so I have given the chat permissions to you. So now, if you guys can think, if you guys require 200 से ज्यादा यूएस कंपनीज का जो है मैंने डाउनलोड करे हैं, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं? अगर आपको ये 200 कंपनीज की लिस्ट चाहिए तो प्लीज टाइप यस इनटू द चैट बॉक्स. Brilliant, brilliant, brilliant. Thank you for responding. Thank you so much for responding. So मैं क्या करूंगा, मैं इस लिस्ट को एक पीडीएफ फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करके आपको मैं शेयर कर दूंगा. इनफैक्ट मैं जो है आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आपके साथ एक रिसोर्स लिंक, आपके साथ डाउनलोडेबल रिसोर्स लिंक शेयर करूंगा. तो जो जो चीजें आपकी हैं, मैं उस लिंक के ऊपर सारी की सारी चीजें मैं आपके पास डाल दूंगा. एंड वो आप लिंक को डाउनलोड लिंक के ऊपर जाएंगे और उसके बाद उन सबको आप डाउनलोड कर पाएंगे इस रिसोर्स को. सो आई एम गोइंग टू पुट दिस into that resource link as well. Now I'm talking about the largest opportunity. Now what is the largest opportunity? अब मैं यहाँ पर 1 या 2 मिनट लगा करके आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आपने अभी देखा होगा इंडिया के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज से इस टाइम के ऊपर लोग लॉक इन हैं. तो मैं इस टाइम के ऊपर जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज्यादा बात करूंगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंडिया हु हैव जॉइंड दिस वेबिनार. सो अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आरबीआई ने बैंक्स को हेल्प करा है ताकि बैंक्स आपको इन टर्न लोन दे सके या आपको शॉर्ट टर्म लोन दे सके और आपको हेल्प कर सके. तो हुआ क्या है कि मैं आपको 2 या 3 चीजें बताऊंगा जो आपने पढ़ी होंगी. हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे, हो सकता है कुछ लोग इसको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे. तो आरबीआई ने रेपो रेट कम करा है. रेपो रेट होता है कि जब आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है तो जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट. अब जब बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो बैंक्स जो है वापस से आरबीआई को पैसा देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं. ओके, सो इस केस के अंदर जो है देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. अगर बैंक, इफ द बैंक डिपॉजिट्स द मनी इन आरबीआई's अकाउंट एंड देन अर्न्स इंटरेस्ट ऑन दैट, दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज लिंक्ड विद रिवर्स रेपो रेट. अभी क्या हुआ है कि रेपो रेट भी कम हो गया है और रिवर्स रेपो रेट भी कम हो गया है. इससे हुआ क्या है, रेपो रेट कम होने से क्या हुआ है कि बैंक्स जो है कम प्राइस के ऊपर, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है आरबीआई से पैसा ले सकते हैं. ओके, अब बैंक जो है जब उसने पैसा ले लिया तो बैंक अर्न कैसे करेगा? सो बैंक जो है या तो आपको लोन देगा या आरबीआई के पास अपना एफडी करवा देगा ताकि उसको वहां से आरबीआई से इंटरेस्ट मिल सके. सो व्हेन आरबीआई इज बेसिकली, व्हेन बैंक इज गिविंग पैसा टू आरबीआई, देन आरबीआई जो इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. अब रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है तो उस केस के अंदर जो है बैंक का जो है जो अर्निंग है वो ज्यादा कहां से होगी? बैंक को ज्यादा अर्निंग होगी अगर वो आपको लोन देते हैं ताकि वो लिक्विडिटी मेंटेन करे, लोन दे आपको. ओके, सो इन दिस केस, सो आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि बैंक के पास जो है बहुत सारा पैसा है. कितना पैसा है? 2,88,000 करोड़ रुपया जो इस टाइम के ऊपर जो है वो बैंक के अंदर है. अब वो बैंक क्या करेंगे? बैंक जो है उसको आपको लोन देने के अंदर यूज करेंगे. अब जब कंपनीज लोन लेंगी, वो लोन लेके घर में थोड़ी रखेंगी ये पैसा. वो जब कंपनीज लोन लेंगी तो वो क्या क्या चीजें करेंगी? वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देंगी, वो अपने बिजली के या EMIs देंगी, बिजली के बिल्स देंगी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर गोइंग टू give payments to the vendors, and they are also going to invest on capital expenditure. नया इक्विपमेंट, नई मशीनरी, जो जो चीजें जरूरी है उनको वो खरीदेंगे EMIs के बेसिस के ऊपर. अब क्योंकि जो नया इंटरेस्ट रेट है वो लोअर इंटरेस्ट रेट होगा जो बैंक से मिलेगा उनको, तो बहुत सारी कंपनीज जो है पैसा लेंगी. अब वो ऑब्वियसली जब पैसा सारा मार्केट में आएगा वो उसको स्पेंड करेंगे. जब वो स्पेंड करेंगे दैट मीन्स कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये डिमांड जो है इसको तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला है कि आपको 2 साल के अंदर ये इंटरेस्ट चुकाना होगा. तो इसका मतलब 2 साल के अंदर इस पैसे को घुमाना होगा, यानी कि 2 साल के अंदर मेजर तेजी से जो है मेजरली ये पैसा स्पेंड भी होगा. अब अगर ये पैसा स्पेंड होगा तो अगर आप ऐसे सेलर हैं और आपका जो है कोई बायर है जो इसके पास लोन लेकर के पैसा है और वो स्पेंड करना चाहता है, अब आप उन तक नहीं पहुंचते और वो अब तक नहीं आपको जानते, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी. और अभी ऐसा जो लोग बता रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर जो है 2,88,000 करोड़ रुपए हैं, ये जो है लगभग 6 लाख करोड़ या लगभग 10 लाख करोड़ तक की ये वैल्यू जाएगी, लिमिट जाएगी. सो अल्टीमेटली जो है ये सारा का सारा पैसा मार्केट में आएगा. सारा का सारा पैसा मार्केट में आएगा तो लोग इसके अंदर जो है अपनी जिनको सैलरीज मिलेंगी वो बाकी चीजों के ऊपर स्पेंड करेंगे, तो B2C बिजनेस जो है बढ़ने लग जाएगा. जब लोग इसके अंदर
जब वो बढ़ने लगेगा तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, यानी कि B2B बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। जब रॉ मटेरियल के लिए प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग के अंदर मशीनरी चाहिए होगी, इक्विपमेंट चाहिए होगा, स्किल्ड सर्विसेज चाहिए होंगी, स्टाफ चाहिए होगा, तो सारी की सारी इकोनॉमी वुड बी बैक ऑन ट्रैक, व्हिच एसेंशियली मीन्स कि ये सारा का सारा पैसा जब मार्केट में आएगा तो इसके अंदर से आपको कितना पैसा चाहिए। द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग इज कि व्हाट इज योर शेयर ऑफ दिस 2,88,000 करोड़ रुपए, 2,88,000 करोड़ रुपए में से आपको कितना मिलेगा। वो तब मिल सकता है जब या तो आप अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स को जो है थोड़ा सा शार्पन कर लें। यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी अनलेस यू रिमेंबर वन थिंग। व्हाट इज दैट थिंग? अगर आप अपने प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को ठीक करते हैं, ऑपरेशंस को ठीक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम करते हैं, all of these functions send cash flow out. Understand, marketing and sales is the only function that brings cash flow in. आपको इस चीज को बहुत खास ध्यान रखना है। मार्केटिंग एंड सेल्स इज द ओनली फंक्शन इन ए बिजनेस दैट ब्रिंग्स कैश फ्लो इन। तो आप आपका मेजर ध्यान जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर होना चाहिए। एंड इन कमिंग टाइम्स, क्योंकि चीजें जो हैं ब्लीक होंगी, लोग एक्शन लेने से घबराएंगे, पैसा स्पेंड करने से घबराएंगे, तो उस केस के अंदर जो है आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा ज्यादा, और उसके अंदर रिजल्ट्स भी हो सकता है आपके कम हो। सो मे बी फॉर सम टाइम इन नियर फ्यूचर you may have to work twice as hard yet settle for half the results। इस केस के अंदर आपको जो है एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर मेहनत करनी है तो मेजॉरिटी ऑफ दिस मेहनत किस जगह के ऊपर होनी चाहिए? यू हैव टू गेट अल्ट्रा एग्रेसिव इन योर मार्केटिंग एंड सेल्स। यू हैव टू राइट गाइस बिकम रियली रियली एग्रेसिव इन योर मार्केटिंग एंड सेल्स, बिकॉज वो ही एक फंक्शन है दैट ब्रिंग्स कैश फ्लो इन, रेस्ट एवरीथिंग सेंड्स कैश फ्लो आउट। तो अगर आपको मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है, हम करेंगे कहां पर? मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स हाउ डू यू गेट unlimited clients, how do you get you can say tons of leads and eventually clients? What are the strategies? तो आपको जो है मार्केटिंग के अंदर तीन क्वेश्चंस के ऊपर काम करना होता है। ओके, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, हु इज योर टारगेट ऑडियंस? आपको बात करनी किससे है?
Two, now, how do you capture this person's interest? आप तो इससे बात करने में इंटरेस्टेड हो, वो आपको नहीं जानता, वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि वन, आपको लीड्स नहीं मिलती, कन्वर्जन्स नहीं होती, मीटिंग्स नहीं मिलती, because you are interested in talking to this guy, but this guy is not interested in talking to you. So what is your game plan to capture his or her interest? How do you capture their interest is the second question. Question number three, once you have been able to secure and capture this person's interest, how do you get money out from his or her pocket and put it in your own pocket? So that means core sales questions. तो अगर आप ये देखें, आपके पास इन तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब नहीं है, तो आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स काम करने वाली नहीं है। आज के दिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर वन के कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। सो द स्ट्रेटेजीज आर गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू तरीके से आप जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। सो द स्ट्रेटेजीज आर गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू डिस्कस द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट strategy to generate hundreds or thousands of leads. And then I'm also going to talk about a backdoor hack that shall reveal thousands of business prospects in less than 1 minute. Okay. Now, what are the results going to be after this today's webinar? Once you start implementing, of course, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं चीज आपको, once you now thousands of leads, and then I'm also going to talk about a backdoor hack that shall reveal thousands of business prospects in less than 1 minute. Okay. Now, what are the results going to be after this today's webinar? Once you start implementing, ऑफ कोर्स आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं चीज आपको लेकर के गाइड करूंगा, मगर अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। सो द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने चीजों को समझा और जाके उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में डाल दिया।
तो मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस, हाउ डू यू गेट दिस थिंग इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो अगर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू करा तो आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? यू विल स्टार्ट गेटिंग टन्स ऑफ न्यू क्लाइंट्स रिलेटिवली फार मोर इजिली। टू, आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप कितने सालों से बिजनेस में हो, वो कहते हैं 1 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 60 साल से बिजनेस के अंदर है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि इन 10 सालों में, 20 सालों में आपके टोटल कितने क्लाइंट्स रहे हैं, तो वो नंबर बताते हैं 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि लास्ट 1 साल में कितने लोगों ने आपसे बिजनेस करा, तो वो जो नंबर बताते हैं वो श्रिंक करके, इतने सारे नंबर में से वो श्रिंक करके इतना सा नंबर रह जाता है। सो इसको हम बोलते हैं लॉस क्लाइंट रेशो, कि आपके साथ पिछले 7 साल में, 10 साल में, 20 साल में कितने लोगों ने बिजनेस करा, और उसके बाद लास्ट 1 साल में कितने लोगों ने बिजनेस करा। तो इसको हम बोलते हैं लॉस क्लाइंट रेशो, विच कम्स आउट टू बी इन मोस्ट बिजनेसेस एनीवेयर बिटवीन 85% between you can say 77%, 75% and 85%। तो इसके अंदर जो है आप देखते हैं कि आपके पास जो रिटेंशन रेट होता है, क्लाइंट रिटेंशन रेट होता है, वो जनरली 15-20%, 25% के आसपास होता है फॉर मोस्ट बिजनेसेस। अगर आपका रिटेंशन रेट 40 से 50% या उससे ज्यादा है, तो यू कैन पैट ऑन योर बैक, यू कैन कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, प्रॉब्ली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक जॉब। But for most businesses, irrespective of what products, what services they sell, irrespective of what market, what industry they are in, their lost client ratio is anywhere between 75 to 85%। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, उन जो पास क्लाइंट्स हैं उनको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम के ऊपर आपसे बिजनेस करा, उनको मालूम है कि आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, आप कैसे प्रोडक्ट्स देते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, आपकी डिलीवरी सप्लाई लाइंस वगैरह कैसी हैं। इसी तरीके से आपने उनके साथ बिजनेस करा, यू हैव एक्सपीरियंस देयर पेमेंट टर्म्स, देयर वे ऑफ वर्किंग एंड डूइंग बिजनेस विद यू, सो यू आर आल्सो कंफर्टेबल। हाँ, इसमें से ऐसे कुछ क्लाइंट्स होंगे जो हो सकता है आपसे नाराज हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे हो सकता है आप नाराज हो। मैं कहता हूं उनको भी छोड़ दो, उन 5, 10, 15% लोगों को भी निकाल दो, यू आर स्टिल गोइंग टू बी लेफ्ट विद ए ह्यूज volume of clients that have stopped doing business with you just because you never went back to them and asked for business। That means कि आप भी उनको भूल गए, वो भी आपको भूल गए, इसकी वजह से बिजनेस नहीं हुआ। अब ये दूसरा जो मैंने आपको सिस्टम बताया, इससे आप लॉस क्लाइंट को रीएक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। ओके, इसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से, एग्जिस्टिंग लोगों से there is a question why lost client ratio is low. It is not low, it is very high. 75 to 85%, it is very, very high। Okay, so retention ratio is small, lost client ratio is very, very high। Okay, so coming back to this question, coming back to this context of the slide, जब आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आप उनको कैसे दोबारा से बेच सकते हैं, उनको और कैसे अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो जब भी मैं रीसेल, अपसेल, क्रॉस सेल के बारे में बात करता हूँ तो लोगों का क्वेश्चन होता है, मैं यहाँ पर 1 मिनट लगाऊंगा ताकि आपको रीसेल, अपसेल और क्रॉस सेल समझ में आ जाए। रीसेल का मतलब होता है दैट यू आर बाइंग, दैट यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल्स के अंदर होता है, आपका खत्म हो जाता है, आप फिर और खरीद लेते हो, फिर खत्म हो जाता है, फिर और खरीद लेते हो, एंड सो फोर्थ। उसके बाद हम आते हैं अपसेल और क्रॉस सेल के ऊपर। तो अपसेल एंड क्रॉस सेल के ऊपर जो मैं एग्जांपल देता हूँ, टिपिकली लेट अस से कि आप एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए गए, आपने जो है सेल्स पर्सन को बताया कि मेरे को जो है इस इंच की स्क्रीन, इतने इंच का इतनी मेमोरी, इतना कैमरा, ये सब चाहिए मेरे को। और सेल्स आपने बोला कि मेरे को ना 32 GB वाला आप मेरे को फोन दे दो। सेल्स पर्सन ने आपसे पूछा कि क्या आप वीडियोस वगैरह या सेल्फीज वगैरह लेते हैं, तो आपने बोला हाँ मैं लेता हूँ या मैं लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि कितने हो जाते हैं, तो आपने बोला 200-300 हो जाते हैं रोज के, 100-150 हो जाते हैं रोज के, या 5-7-10 वीडियोस हो जाते हैं रोज के, टिकटॉक बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो इसका मतलब कि आपकी जो कंजम्पशन स्पेस की है वो तेजी से आप यूज कर रहे हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर सेल्स पर्सन आपको बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि अगर आप एक 32 GB वाला फोन लेते हैं, तो हो सकता है कि अगले 6-8 महीने के अंदर या 9-10 महीने के अंदर आपकी स्पेस फुल हो जाए। तो आप ये जब फुल हो जाएगी स्पेस, तो आपकी जो है एप्स हैंग होने लग जाएंगी, क्रैश करने लग जाएंगी, आपको फिर डेटा इधर बैकअप लो, उधर बैकअप लो, देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन यूजिंग योर फोन। फोन आपका स्लो डाउन कर जाएगा। तो बेटर है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप 32 GB की जगह 64 GB वाला या 128 GB वाला फोन ले लें। हाँ, सब लोगों को ये बात ठीक नहीं लगेगी, कुछ लोगों को लगेगा कि सेल्स पर्सन है, सेलूपंती कर रहा है या कुछ जबरदस्ती मेरे को बेचने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो बात ना माने, मगर कुछ लोग जिनको ये बात समझ में आएगी और ठीक लगेगी, वो कहेंगे हाँ ठीक है, आप मेरे को 64 GB वाला या 128 GB वाला फोन दे दो। सो दैट मीन्स अभी अभी क्या हुआ, अपसेल, कि जो वो लेने आए थे वो सेम कैटेगरी के अंदर कुछ और आपने हायर प्राइस के ऊपर बेच दिया उस सेल्स पर्सन ने, या आप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं
क्रॉस सेल की। व्हाट इज क्रॉस सेल? अब जैसे ही अभी अभी उसने फोन आपको बेचा, आपने फोन खरीदा, तो उन्होंने बोला कि आप वर्किंग हैं या आप घर में ही रहते हैं? तो आपने कहा हाँ मैं वर्किंग हूँ, ऑफिस में भी जाना होता है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करें, एक आप जो है ना चार्जर एडिशनल ले लें, क्योंकि कई बार आप घर में चार्जर भूल गए या ऑफिस में चार्जर भूल गए, इट मे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड बाय वन मोर चार्जर? सो यू सेड ओके, लेट मी बाय वन मोर चार्जर। सो उन्होंने पूछा डू यू ड्राइव? यू सेड यस। तो उन्होंने आपको जो है कार चार्जर भी बेच दिया, लाइटर सिगरेट लाइटर चार्जर जो होता है वो बेच दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका यूजेज कितना होता है दिन के अंदर? तो आपने बोला कि 3-4 घंटे बात हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि आपने एक्सपीरियंस करा है कि आपकी बैटरी खत्म हो गई हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो या कभी आपको जरूरत हो और उस टाइम पे ना करना हो? तो आपने कहा हाँ कभी कभी होता है। तो आपने उन्होंने आपको बैटरी बैंक भी बेच दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक फ्लिप कवर ले लो, फिर उसके बाद ले ला स्क्रीन गार्ड ले लो, और अगर आपने फोन एक्सपेंसिव लिया तो हो सकता है आपको वो इंश्योरेंस भी बेच दें। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, you did not you did not uh, go to that shop to buy insurance for the phone. You did not go to that shop to buy the flip cover. You did not go to that shop to buy screen guard. You did not go to that shop to buy power backup or backup battery. Okay, but you ended up buying. So अभी अभी क्या हुआ, उन्होंने क्रॉस सेल कर दिया आपको बहुत सारी चीजें। तो जो आपने मेन प्रोडक्ट लेना था वो तो ले ही लिया, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 चीजें उन्होंने आपको ऑफर करी जिसमें से आपने कुछ चीजें खरीद ली। Now you will probably understand and you will probably know this shopkeeper or this phone seller would have made more profit on selling these accessories rather than the money, more than the money that this guy has made by selling you the phone. तो इसका मतलब इनका जो मेन आपका जो प्रॉफिट आया है वो आया है एक्सेसरीज बेच के, क्रॉस सेल करके। सेम चीज कार्स के अंदर होती है, सेम चीज हर जगह पे होती है। सो यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ओन अपसेल एंड क्रॉस सेल स्ट्रेटजीज। नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रेटजी कि आपको ये सब चीजें करने के लिए मिल जाएंगी जब आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। अब लोग मेरे को कहते हैं कि मेरा तो B2C बिजनेस है, मेरे को तो कंज्यूमर से बात करनी होती है, मेरा रिटेल बिजनेस है, मेरे पास तो वॉक इन आते हैं, उनके ऊपर क्या ये वर्क करेगी? हाँ, ये स्ट्रेटजी और इसी के कुछ फोर्किंग करेंगे, अगर हम कुछ कुछ के न्यूएंसेस निकालेंगे, कुछ उसकी वेरिएशंस करेंगे, तो B2C के ऊपर वर्क करेगी। B2B में वर्क करेगी? हाँ, ये B2B में वर्क करेगी। आपको किस भी बिजनेस से बात करनी है, आपको उस बिजनेस से बात करने में हेल्प करेगी। क्या ये गवर्नमेंट बिजनेस जनरेट करने में हेल्प कर सकती है? हाँ, गवर्नमेंट बिजनेस जनरेट करने में भी हेल्प कर सकती है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मेरा रिटेल चैनल है, क्या उसके अंदर भी हेल्प कर सकती है? हाँ जी, उसके अंदर भी कर सकती है। अब इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए, वो चाहिए आपको डेटा। डेटा चाहिए। डेटा जो है हमारे पास दो तरीके का जो हमारे को चाहिए होगा, एक होगा मोबाइल नंबर्स, एक होगा ईमेल एड्रेसेस। ओके, वैसे जो सिस्टम है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा, उस सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू हैव 20 you can say mobile numbers, minimum 20 और minimum 20 email addresses. But I would say कि आपके जो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे अगर आपके पास 1000 से ज्यादा हो ये डेटा। ओके, ये आपके पास जो डेटाबेस है अगर 1000 से ज्यादा एंट्रीज का होगा तो आपके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ओके, नाउ अब लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे पास डेटा है या नहीं है, आई डोंट नो, डेटा कैसे मिलेगा, कहाँ से डेटा मिलेगा? तो मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ डेटा निकालने की। सो आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पिछले आपसे 1 या 2 सालों में बिजनेस करा है, यू कैन collate their data, you can collate a file। अब फाइल आपने बनानी है, एक आपने एक्सेल की फाइल बनानी है जिसके अंदर सिर्फ मोबाइल नंबर्स होंगे, एक कॉलम के अंदर एक और फाइल आपने बनानी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ईमेल एड्रेसेस होंगे। तो प्रैक्टिकली आपकी 2 फाइल्स बन जाएंगी। तो आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए फाइल बनाई, एक आपने मोबाइल नंबर्स की फाइल बनाई, एक आपने एक्सेल के अंदर ईमेल एड्रेसेस की फाइल बनाई। लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं कि जिनसे आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपके टारगेट ऑडियंस हैं, मगर अभी आपने इनसे बात शुरू नहीं करी है, इनसे लीड जनरेट नहीं करी है, और अभी इनसे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। ये होते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। जब तक वो मना ना कर दें, जब तक आप उनको यू कैन से वैलिडेट ना कर ले कि हाँ दिस इज अ पर्सन वर्थ फॉलोइंग, दिस इज अ पर्सन दिस विल कन्वर्ट इवेंचुअली, तो उसको हम बोलते हैं लीड। अगर वो लीड तक नहीं पहुंचे स्टेज तक तो उसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट। तो प्रॉस्पेक्ट जो है उसकी लिस्ट जो है आपके पास अगर हो, आपने हो सकता है एसोसिएशन की डायरेक्टरीज ली हुई हो सकता है आपने कहीं से डेटा लिया हुआ हो। किस किस तरीके से डेटा आता है? डेटा जो है बॉट एंड एक्वायर्ड लिस्ट हो सकती है। तो दिल्ली के अंदर जो है जैसे प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान के अंदर अगर आप कोई एग्जीबिशन अटेंड करने जाते हैं तो वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं कि आप जो करंट एग्जीबिशन चल रही है उसके एग्जीबिटर्स का डेटा आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, एसोसिएशन डायरेक्टरीज आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपने
प्रगति मैदान के बाहर आप आते हैं तो कई बार वहाँ पे रोड के ऊपर वेंडर्स लोग लगा कर बैठे होते हैं, 50,000 आर्किटेक्ट्स, 500,000 बिजनेसेस एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से कुछ कंपनीज हैं, जैसे फंडू डेटा है एक कंपनी, फंडू डेटा डॉट कॉम है। इसी तरीके से एक और कंपनी है दैट इज कॉल्ड क्रोनो INC, क्रोनो इंक। तो ये कंपनीज हैं, ये भी आपको डेटा प्रोवाइड करती हैं, दे ऑल्सो सेल डेटा। देन इट कैन बी योर बिजनेस रोलोडेक्स। आप जो है, अगर आपसे 1-2 साल, 2-3 साल पहले तक देखें, जब या 4-5 साल पहले तक देखें, जब मोबाइल फोन इतने पॉपुलर नहीं थे, मोबाइल फोन तो क्या काफी टाइम हो गया पॉपुलर हो गए, मगर उस टाइम के ऊपर हम बिजनेस कार्ड्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे।
और वो बिजनेस कार्ड्स हम लोग ऑफिस के अंदर लेकर के आते थे, और एक उसके हमारे पास एक बिजनेस कार्ड की एक डायरेक्टरी होती थी जिसके अंदर हम पॉकेट्स के अंदर बिजनेस कार्ड डालते थे। लेफ्ट साइड के ऊपर भी 8 बिजनेस कार्ड, 6 बिजनेस कार्ड या 10 बिजनेस कार्ड होते थे, राइट साइड के ऊपर भी होते थे। दिस इज नोन एज बिजनेस रोलोडेक्स। तो आप वो सारे के सारे प्लीज कीप देम आउट, ब्रिंग देम आउट, डस्ट देम एंड टेक आउट द बिजनेस कार्ड्स ऑफ द पीपल। इनको आप सेग्रीगेट करें वेंडर्स के हिसाब से और बायर्स के हिसाब से, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, और इनकी लिस्ट बना लें। लिस्ट किस चीज की बनेगी? मोबाइल नंबर्स की और ईमेल एड्रेसेस की। उसके बाद इंडिया मार्ट से आप डेटा ले सकते हैं। इंडिया मार्ट से डेटा आप जो है स्क्रैप कर सकते हैं। इंडिया मार्ट जो है डेटा सेल भी करता है, और दूसरा आप इंडिया मार्ट के ऊपर जाकर डेटा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। किसी ऑपरेटर को बोल करके आप उनसे डेटा निकालने के लिए बोल सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने इंडिया मार्ट जो है सब्सक्राइब कर रखा होगा, पेड आपने उसके अंदर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होगा, तो आपके पास बहुत सारी लीड्स आती होगी। अब जब इंडिया मार्ट से जब लोग लीड्स लेते हैं तो मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इंडिया मार्ट तो बेकार है, लीड्स आती हैं बहुत सारी आती हैं, काम की नहीं होती। तो इंडिया मार्ट की साइंस तो एक अलग होगी। मगर मैं आपको, जो अभी बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, मे बी इन सम अदर सेशन और वर्कशॉप आई एक्सप्लेन हाउ इंडिया मार्ट वर्क्स एंड हाउ यू कैन मेक इट एक्सट्रीमली 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 प्रॉफिटेबल। बट कमिंग बैक टू दिस, कि आपके पास लीड्स आई हैं आज तक बहुत सारी, मगर आपने कन्वर्ट नहीं कर पाए, आपको टाइम नहीं मिला उनसे बात करने का, तो कोलेट कर ले सारी की सारी लीड्स, उनको सारा अपने पास निकाल ले। अगेन एक बिजनेस मोबाइल नंबर्स की आप एक फाइल बना लें और एक ईमेल एड्रेसेस की फाइल बना लें। सिमिलरली हो सकता है आप जस्ट डायल के ऊपर हो। जस्ट डायल जो है इंडिया की सर्विस है, फोन सर्च इंजन बोलते हैं इसको। तो अगर आपके पास जस्ट डायल की सर्विस है, आपने सब्सक्राइब करी हुई है पेड वाली, आपके पास बहुत सारी लीड्स होंगी जो कन्वर्ट नहीं हुई होंगी। इनकी आप एक लिस्ट बना लें, एक फाइल बना लें मोबाइल की, एक फाइल बना लें ईमेल एड्रेसेस की। ओके, देन लिंक्डइन कनेक्शंस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होंगे, किसी के 200, किसी के 500, किसी के 1000, 5000, 10,000, 20,000 कनेक्शंस होंगे। इन सारी लिस्ट को आप डाउनलोड कर लें अपने पास। अब से लगभग 6-8 महीने पहले तक ये डाउनलोड आप कर सकते थे, सारे के सारे कनेक्शंस, उनके ईमेल एड्रेसेस और मोबाइल नंबर आ जाते थे विद अबाउट 2 और 3 क्लिक्स। अब लिंक्डइन ने ये फैसिलिटी विड्रॉ कर दी है, तो मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव टूल बताता हूँ, salesql.com। So you can write down salesql, sales q for quality, l for logic, salesql.com। ये आपका जो है टूल है। इसके अंदर आप इस टूल को ले सकते हैं। फ्री वर्जन के अंदर आप लगभग 100 कनेक्शंस डाउनलोड कर पाएंगे, और पेड वर्जन के अंदर डिपेंडिंग ऑन कि आपके कितने कनेक्शंस हैं, आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे, आप उनका पेड वर्जन ले सकते हैं। ओके, सो आपको डोंट वरी, मैं सारे के सारे टूल्स जो आपको रिसोर्स सेक्शन के अंदर आपको दूंगा, आपको मैं डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करूंगा। उस डाउनलोड लिंक के अंदर सारी की सारी चीजें मेंशन होंगी, सो डोंट वरी। ओके, अब मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर आ रहा हूँ। दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड 2K1W। आई हैव नेम्ड दिस स्ट्रेटेजी। मैं स्ट्रेटेजी करूंगा,